understanding of English language and also enabling you to communicate grammatically, fluently and confidently with great authority and command in a given situation. Guys, coming straight to the point, I was third day of facing an interview. This is the part C here. It is C. So in first part I just discuss what are the things which we have to show in the interview, that is the positive things. And the second day I just discuss what are the negative things which you should avoid, you should not speak out. So after these two things I come to just start the third category is how to speak and what to speak. So let us see, even though we have certain precautions there, certain do and don'ts there, in mid period I used to explain them. But the thing is that when you face an interview, the first thing that is very important is your eye contact. The first thing is your eye contact. Now just let me explain what is the eye contact and why it is necessary, important for this interview. So guys, the moment you enter the interview board, you will find that a group of elderly people are sitting and they are waiting for you, and all the eyes are on you. So it is very important for you to have eye contact with them. Generally, the students, they come, and when they see a lot of people, a group of people, elderly people, qualified people sitting over there, they are nervous and they keep their their faces down instead of having eye contact. So if you have good eye contact with them, and then you nearly half you win. So the first thing I understand is the eye contact. Be it an interview, a small interview, or be the interview of an highest order, say IAS or PCS, students are puzzled here at this point. They are not able to make proper eye contact with the examiners or the members of the interview boards, and therefore they lose somewhere something. तो ये ज़रूरी हो जाता है कि जब आप इंटरव्यू बोर्ड में हैं तो आप आई टू आई कांटेक्ट कीजिए, और जब आप इसमें सफल होते हैं तो आप थोड़ा सा मुस्कुरा करके और अपने फेवर में उन लोगों को लीजिए, और दैट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनालिटी, एंड दैट इज़ व्हाई आई कॉल फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन. विदिन 15 मिनट्स किसी को इम्प्रेस करने की टाइमिंग होता है. विदिन 50 seconds they can be yours. So if you are a good candidate, you come to the board, say good morning sir, and then you have to say good morning to all, not that good morning sir, that is wrong. Not say good morning sir, एक ही बार में सबको निपटा दिया, गुड मॉर्निंग, ऐसे करके एक बार में सबको नहीं निपटाना है. आपको करना क्या है, you have to enter and then you have to say good morning sir, good morning sir, good morning ma'am, good morning ma'am, good morning sir. ऐसे करके आपको सबको देखना है. You have to glance, you have to throw your glance
at everyone and then have eye contact. जब आप आई कांटेक्ट कर लेते हो तो थिंग्स बिकम ईजियर, चीज़ें जो है बहुत आसान हो जाती है, एक कनेक्ट हो जाते हो, यू आर नाउ कनेक्टेड टू द इंटरव्यू बोर्ड. तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है. यू फील फेमिलियर, यू फील very much at home when you are connected, and when the interview proceeds, definitely you will know that the ball is in your court. So guys, the first thing and the foremost I want to rate is your eye contact the moment you enter in the interview board and you look at the members sitting there, and you just cheer and have eye contact and say hello and say good morning and maybe good afternoon sir, and you each and everybody you just in a few seconds you just travel from one eye to another. That is the best quality. and यहाँ तक कि IAS PCS एग्जामिनेशन के बच्चे भी इसमें फेल हो जाते हैं. ये कोई सरल काम नहीं है. इट रिक्वायर्स ए ग्रेट प्रैक्टिस. आप प्रैक्टिस इसको करना पड़ेगा. आप 2-4 आदमी के साथ बैठिए, उससे आई कांटेक्ट रखिए जो बड़े लोग हैं, और उससे बातचीत कीजिए, और आप इस तरह से आप जो है उसमें ये करते हैं. तो पहली चीज़ मैंने बताया कि आई कांटेक्ट. आई कांटेक्ट से क्या होता है, ईजी कम्युनिकेशन हो जाता है. हम जब बात करेंगे, जिस चीज़ पर बात करेंगे तो बहुत इजी हो जाता है. अच्छा, दूसरी चीज़ जो है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है कि आप जो है बोलना शुरू करोगे. बोलने के क्रम में हम बता देते हैं किस तरह से बोला जाता है. तो गाइस आप देखो कि एक तो आपको मीडिया में बहुत तरह की चीज़ें होती हैं, और फ्लुएंट बोलना, फ्लुएंसी के नाम पर कितनी दुकानें खुली हैं. फ्लुएंसी, और कोई यही नहीं जानता कि फ्लुएंसी होती क्या चीज़ है. जैसे मैं कहता हूँ कि हम आपको फ्लुएंसी सिखाएंगे. फ्लुएंसी का मतलब होता है कि रैपिड स्पीड से बोलना, ये फ्लुएंसी नहीं होता. स्पीकिंग रैपिड, और शब्दों को बोले जा रहे हो और यू आर अनकंट्रोल्ड, यू कैन नॉट कमांड द सेंटेंसेस एंड वर्ड्स, एंड तो वो फ्लुएंसी नहीं होता है. फ्लुएंसी का मतलब ये होता है कि आपने जो सोच रखा है उसको आप जो है अच्छी तरह से बोल पा रहे हो कि नहीं. ये हो सकता है आप धीरे धीरे बोलें, तो धीरे धीरे बोलने को गलत नहीं माना जाता. दुनिया के टॉप क्लास लीडर्स जो है वो धीरे धीरे ही बोलते हैं, बट दे स्पीक इन ए वेरी कंट्रोल्ड वे. वॉट एवर दे स्पीक, एवरी वर्ड, एवरी सेंटेंस दे स्पीक इन वेरी वेरी कंट्रोल्ड वे. तो दूसरी चीज़ हमने आपको बताया कि आप जो है सहज होकर के धीरे धीरे और कंट्रोल्ड वे में बोलिए. ऐसा नहीं आपको वहाँ पर आप फ्लुएंटली बोल रहे हैं तो आप लोग इम्प्रेस हो जाएगा, और जो सामने बैठा है वो इतना बेवकूफ़ थोड़ा है कि आप ऐसे बोले जा रहे हो बिना मतलब का, और वो जो है आपसे इम्प्रेस हो जाएगा. इस तरह बिल्कुल धारणा है तो मिटा दीजिए. और ये कोई फ्लुएंसी नहीं. फ्लुएंसी का मतलब वर्ड्स आर कमिंग ईजिली टू यू, मीनिंग्स आर कमिंग ईजिली टू यू, व्हाट यू हैव थॉट आउट इट इज़ कमिंग टू यू. दैट इज कॉल्ड फ्लुएंसी. इसी को फ्लुएंसी कहते हैं. फ्लुएंसी का मतलब धड़ 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 बोलना, ऐसा फ्लुएंसी नहीं होता ये. तो प्लीज़ जस्ट नोट इट दैट फ्लुएंसी इज दैट एवरीथिंग इज कमिंग ईजिली टू यू. वॉट एवर यू हैव थॉट आउट, what you want to say, you say it. What you want to say, you say it. It is coming to you easily, maybe slowly. That is not matter. तो दूसरी चीज़ बताया कि आप कंट्रोल वे में बोले. जो भी बोलेंगे वो कंट्रोल होना चाहिए. कंट्रोल्ड वे, और मे भी वो स्लो हो सकता है. स्लो बोलना कोई अपराध नहीं है. स्लो बोलना कोई अपराध नहीं है. हर आदमी का एक जैसा पेस नहीं होता, एक जैसी जुबान नहीं होती.
हर आदमी संसार में अलग अलग है, उसकी अलग अलग ये होती है। तो बहुत तेज़ी से बोलना और अनर्गल बोलना और शब्दों पर कमांड न होना, तो इसको फ्लुएंसी नहीं कहते। तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहता हूँ कि बहुत चीज़ें ये होती हैं कि सबसे गलती होती है। गलती तो नेचुरल होती है, सबसे हो सकती है, आपसे, हमसे, किसी से गलती हो सकती है। बोल रहे हैं तो कभी हमारे शब्द इधर से उधर हो सकते हैं, तो उसमें हम थोड़ा सा जो है वो फिट्स एंड स्टार्ट्स जिसको कहते हैं, धीरे धीरे रुक रुक करके बोलना, ये आदमी की आदत है। ऐसा नहीं कि सब बहुत बोले जा रहा है, ऐसा नहीं होता। आप यू लिसन टू ग्रेट स्पीकर, वो भी कुछ कहीं रुकते हैं, कुछ करते। तो अगर कहीं आप बात अटक गई तो आपको क्या करना चाहिए? जैसे जस्ट आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट। अगर बोलते बोलते आपको जस्ट आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट, आप बोल रहे हैं कोई शब्द या कोई सेंटेंस जो है वो आपके जुबान पर उस समय नहीं आ रहा है, तो यू कैन से एक्सक्यूज मी, आई जस्ट लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट। हाँ, तो जब आप कहेंगे कि एक्सक्यूज मी जस्ट आई लॉस्ट माई ट्रेन ऑफ थॉट, तो उसमें थोड़ा सा समय मिलेगा, और जब समय मिलेगा तो हो सकता है कि वो चीज़ जो है नहीं आ रही आपके दिमाग में आ जाए। या आप ऐसे भी कहते हो कि आई वॉन्ट टू से, आई वॉन्टेड टू से, व्हाट आई वॉन्टेड टू से, व्हाट आई वॉन्टेड टू से। अब इतना कहने के बाद जो है आपको याद नहीं आ रहा, तो थोड़ा देर आप एक 2, 3, 4, 5 सेकेंड आप ठहर सकते हो, आप अपने को रिकवर कर सकते हो। तो ये तीसरी चीज़ हम आपको बता रहे हैं कि अगर आप बीच में गड़बड़ा जाते हो बोलने में, स्वाभाविक है, आदमी है और पूछ रहा है कोई चीज़, तो आप जो है उसको उस समय नहीं याद आ रहा है, तब आप उसको ऐसे बोल सकते हो, व्हाट आई वॉज गोइंग टू से, या हाउ कैन आई से दिस। ये भी कहा जाता है, हाउ कैन आई से, कोई जैसे कोई वर्ड नहीं आ रहा है तो हाउ कैन आई से, और इसके बाद आप कुछ सेकंड आप रुक सकते हो, तो वो चीज़ आपके दिमाग में आ गया तो आप तो ठीक है, नहीं तो आप एक्सक्यूज मी कह दीजिए कि इट वॉज माई टिप ऑफ द टंग, आई एम नॉट गेटिंग, सो सॉरी, दिस टाइम आई कैन नॉट रिकॉल। तो ऐसे आप बोलोगे तो आपको एक्सक्यूज हो सकता है, सबके साथ ही होता है। तो ये आपको हमने तीसरा पॉइंट बताया कि आप ऐसे कीजिए। और चौथा पॉइंट जो आपको बताने जा रहा है, हालांकि ये इस पर कई वीडियो बनाएंगे, एक वीडियो से नहीं हो पाएगा। आई एम गोइंग टू मेक एटलीस्ट 5 वीडियोज ऑन दिस, इस पर सी पर। जैसे अब जो चीज़ होता है जनरल क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, जैसे कि किसी इंजीनियरिंग के बच्चे ने हमसे मैसेज पूछा कि सर हम जो है मैकेनिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट मैं हूँ, और मैं अगर इंटरव्यू देने के लिए जाऊँगा तो वो हमसे क्या पूछेगा। तो हम तो नहीं बता सकते कि व्हाट आर द क्वेश्चन दे आर गोइंग टू आस्क, लेकिन ये भी सही है कि वो सारी चीज़ें जो है आपके फिजिक्स केमिस्ट्री से ही नहीं पूछेगा, इसलिए इस पर कोई बहुत ज़्यादा आप चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू इज़ इंटरव्यू, वो हो सकता है कि 30% का पूछे, बाकी 60% का और दूसरा चीज़ पूछ दे। तो जो जनरल चीज़ें पूछी जाती हैं वो ये हैं कि टेल योर स्टोरी। चौथे में जो जनरल जो क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरल
जनरल क्वेश्चन जो सभी बोर्ड के लोग पूछते हैं, और ये 100% ये आउट है क्वेश्चन। जैसे पूछे टेल योर स्टोरी प्लीज। टेल योर स्टोरी, इसका मतलब है कि आप अपने बारे में कुछ बताएं। आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का नाम क्या है, कहाँ से आए हैं, कहाँ से आपने स्कूलिंग की है, कहाँ से आपने कॉलेज किया है, कौन सी यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ा, क्या सब्जेक्ट रहा है, कभी आपने अच्छा किया है, खराब, और आपके हॉबीज़ क्या हैं, आपके व्यूज़ क्या हैं, आप बता सकते हो। आपको 2 मिनट्स 3 मिनट्स टाइम्स वुड बी गिवन टू यू, आप बता सकते हो। इसके लिए गाइस आप पहले से, जब आप इंटरव्यू बोर्ड में जा रहे हो तो पहले से आप जो है उसको लिख लो और उसको याद कर लो। ये प्रश्न तो पूछेगा ही पूछेगा कि टेल मी योर स्टोरी, या कहेगा कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, आप अपने को इंट्रोड्यूस कीजिए। इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, ये भी कह सकता है कि आप अपने को इंट्रोड्यूस कीजिए कि आप, एक ही बात होगा, कहाँ से आए हो, कैसे आए हो, और किस जगह से हो, किस प्रदेश हो। तो हिंदुस्तान बहुत बड़ा जो है वो देश है, और लोग कई प्रदेश हैं, तो जानना चाहते हैं कि आप जो है सिक्किम से आए हो, कि मणिपुर से आए हो, कि केरला से आए हो, उड़ीसा से आए हो, कि उत्तर प्रदेश से हो, कि बिहार से हो, सब जानना चाहते हैं आप कहाँ रहते हो। तो ये चीज़ ज़रूर पूछेगा, और इसी में से वो और दूसरा प्रश्न तैयार करते हैं। ये जो बेसिक प्रश्न है उसी से आपको दूसरा प्रश्न तैयार करेंगे। जैसे आप जो है, हमने कहा कि बनारस से है, तो बनारस में क्या चीज़ प्रसिद्ध है भाई, व्हाट आर द थिंग्स यू लाइक इन वाराणसी, तो यू विल से दैट वाराणसी इज़ ए कल्चरल प्लेस, तो व्हाट काइंड ऑफ कल्चर इज़ देयर, डू यू थिंक दैट वाराणसी रिप्रेजेंट्स द इंटायर कल्चर ऑफ इंडिया, तो आप बताओ कि हाँ ये तो सही है सर। वहाँ पर गुरुद्वारा भी है, वहाँ पर जो है ये मस्जिद भी है, वहाँ पर तो हिंदुओं का तो बहुत बड़ा ये है, गंगा जी हैं, ये यू जस्ट टेल एवरीथिंग। तो ये सारी चीज़ें पूछेंगे कि आप जहाँ कहाँ से रहते हो, विच वेयर डिड यू स्टडी, विच कॉलेज यू स्टडी, सब चीज़ पूछेंगे। तो इस तरह से इसी से बढ़ते जाएगा। दे ड्रा अदर क्वेश्चंस फ्रॉम दिस ओनली फ्रॉम योर स्टोरी। जैसे आपने कहा कि हमको क्रिकेट बहुत अच्छा लगता है, तो आप पूछेगा कि अच्छा यू लाइक क्रिकेट, सो यू मस्ट बी वॉचिंग IPL, विच टीम डू यू थिंक दिस ईयर विल विन, तो आपको बताना पड़ेगा। विच प्लेयर यू थिंक इज वेरी स्ट्राइकिंग प्लेयर दिस डेज, तो आपको बताना पड़ेगा। बॉलर के बारे में बताना पड़ेगा। तो आप जो भी कहोगे उसके बारे में वो जरूर पूछेंगे। ये ज़रूरी नहीं कि तुरंत जाने के बाद आपसे फिजिक्स पूछने लगे या समीकरण देते कि इसको सिद्ध कीजिए, ऐसा कहीं भी नहीं होता। लास्ट में ये या तो मिडिल में इसको रखा जाता है या लास्ट में रखा जाता है। तो अगर आपने कुछ चीज़ें पहले ही से कुछ तैयारी कर ली तो आप इंटरव्यू में आराम से निकल जाओगे। इंटरव्यू में बहुत डिफ़िकल्ट चीज़ नहीं है, लेकिन आप डरते रहोगे, आँख से आँख नहीं मिला सकते, मुस्कुरा कर बात नहीं कर सकते, तो ये सारी चीज़ें दैट विल अफेक्ट योर रिजल्ट। तो हमने आपको बताया कि ये चीज़ जो है पूछी जाती है, जनरल क्वेश्चंस में पूछी जाती है। या कोई स्पेशल चीज़ है, आपके साथ कोई स्पेशल चीज़ है तो आप इसमें बता सकते हो कि आप कोई स्पेशल स्टूडेंट हो। सपोज you are an intermediate student, but you have been district champion, you have been state player, तो आप उसको बता सकते हो कि I have been state player sir in football, I have played against राजस्थान, या कुछ भी कर सकते हो, आप बता सकते हो उसके बारे में। तो गाना गाते हो तो आप ये भी बता सकते हो, नाटक में है तो ये भी बता सकते हो, हमने नाटक किया, बहुत से प्लेस हमने किए हैं, तो ये चीज़ आप बता सकते हो। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। तो फिफ्थ जो क्वेश्चन है वो फिफ्थ क्वेश्चन में ये भी मास्टर क्वेश्चन है, ये भी मास्टर क्वेश्चन है, और विशेषकर IAS और
IPS ये सब जॉब, उसमें तो ये क्वेश्चन 100% है। ये पूछेगा, इसमें कई तरह से पूछ सकते हैं कि व्हाई शुड आई सेलेक्ट यू, व्हाट आर द क्वालिटीज यू हैव दैट मेक अस टू थिंक ओवर you to select. Do you have any qualities? What are the positive qualities you have that you think is important for this post? ये तो पूछना ही पूछना है। क्या कि जैसे कोई भी एम्प्लॉइज़ है तो ज़रूर पूछेगा कि अगर हम आपको को नियुक्त करते हैं तो क्यों करें, आप में क्या खास है, आप में क्या काबिलियत है, what are your special feature that make you think that you are a deserving candidate। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बहुत मास्टर क्वेश्चन है। ये मास्टर क्वेश्चन व्हाई शुड वी सेलेक्ट यू। अब इसको दो ढंग से इसको दो ढंग से पूछता है। एक तो ये पूछेगा कि आपको क्यों सिलेक्ट करें, और ये स्पेसिफिकली पूछ सकता कि व्हाट आर द क्वालिटीज डू यू हैव that compel me to select you, that compel us to select you। कौन सी ऐसी आप में खूबी है जिसकी वजह से हम आपको सेलेक्ट करें, कौन सी ऐसी खूबी है? जैसे आप हिंदी के लेक्चरर हो, पढ़ाने के लिए गए और जो है सब बैठे हुए हैं, तो आप बताइए कि आपने हिंदी में GRF किया है, फिर इसके बाद PhD किया है, नेट भी क्वालिफाई किया है, और फिर आपका एरिया पर्टिकुलर एरिया इज़ देयर दैट यू कैन टीच बेटर, दैट यू हैव रिटन सो मेनी पोएम्स, यू हैव रिटन आर्टिकल्स, यू हैव, आपको बताना पड़ेगा सारी चीज़ें। एंड व्हेन दे आर कन्विंस्ड तो आपको रखा जाएगा। या आप इस चीज़ को जो एक उसके जो मापदंड हैं उसके तहत आपने कौन सी ऐसी चीज़ें कर रखी हैं जिसकी वजह से आप छटने लायक नहीं हैं, तो ये सारी चीज़ें ये करती हैं। अच्छा, कुछ तो ये भी पूछते हैं कि आप में कौन ऐसी चीज़ है जो आप समझते हैं कि आप इस पोस्ट के लिए ठीक नहीं होगा। डू यू थिंक एनी शॉर्टकमिंग्स, डू यू थिंक एनी शॉर्टकमिंग्स दैट debar not you but any candidate that debar a candidate from selecting him या her, जो भी आपने की। तो एक पॉजिटिव निगेटिव सारे तरीके से पूछता है, लेकिन वन क्वेश्चन मस्ट बी देयर, दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन वुड बी देयर। तो अब इसमें से शॉर्ट में भी करके पूछता है, जैसे बहुत से पूछता है कि जस्ट टेल मी टू वेरी इंपॉर्टेंट क्वालिटीज दैट आर फिट या दैट आर वेरी demanding to become an IAS officer. Tell me 2 qualities or 3 qualities that are very striking for becoming an IPS officer. तो ऐसे करके पूछता है। तो कुछ भी आप जैसे जिस पद के लिए जा रहे हैं, मैं तो ये जनरल क्लास में हूँ, आई एम नॉट इन पर्टिकुलर क्लास कि
कोई साइंस या आर्ट्स का नहीं, लेकिन ये चीज़ ये जो है अभी हम आपको जो बताएं, ये चौथा क्वेश्चन ये इसी तरह का होता है। ठीक, ये क्वेश्चन पूछेगा रिलेटेड टू कि इसमें किसमें है। अच्छा, अब क्या चीज़ है कि अब कुछ हम आपको सजेशंस बताते हैं इसमें कैसे इस चीज़ को बोलने में आपको जो चीज़ आपको हेल्प करेगी। पहली चीज़ तो ये कीजिए कि आप जो सोचना शुरू कीजिए। यू जस्ट स्टार्ट थिंकिंग एवरी डेली एक्टिविटीज़ इन इंग्लिश। जो भी आप करते हो या करने जा रहे हो उसको अंग्रेजी में सोचो कि आप अंग्रेजी में उसको कैसे कर सकोगे। तो इस तरह से बोलने का प्रैक्टिस होगा। तो आप बोलने का। दूसरी चीज़ कि आप स्पीक लाउडली। व्हेन यू स्पीक इंग्लिश, स्पीक लाउडली। The more you speak loudly, the better pronunciation you will develop, and the art of speaking will be developed. So this point is that develop to art of storytelling है एक। तो जैसे art of story, just to pick up a story and just go on telling, or speak loudly. Speak loudly, emphatically. Every word, every sentence that you speak is you speak loudly. Even if you read book, you read it loudly. So far as English is concerned, because you wanted it to speak. तो इस तरह से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, आप बोल सकते हो। स्पेसिफिक क्वेश्चन में अभी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि स्पेसिफिक क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो भी हम बात कर सकते हैं, जैसे पॉलिटिक्स पर, जनरल चीज़ पर किस पर बात हो सकती है, तो इस पर भी हम बात करेंगे। बट दिस पीरियड इज़ टू स्मॉल टू डिस्कस ऑल दीज थिंग्स। तो हाँ, एक चीज़ और है। एक तो आप पढ़ने की प्रैक्टिस कीजिए, और दूसरी चीज़ है सुनने की प्रैक्टिस कीजिए। इमर्स योरसेल्फ इन इंग्लिश कम्युनिटी। दैट इज you listen to English songs, you read English novels, you just watch the movies, English movies, of course the serials also, you listen commentary, English commentary. So immerse in English, immerse yourself in English, and that is another way to strengthen your speaking power. So अच्छा, देखिए लिसनिंग इज़ ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट इन इंटरव्यू बोर्ड। एक चीज़, हाँ, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, आप इसको 6 पॉइंट पे आज के ले सकते हो कि लिसनिंग इज की। जब आप इंटरव्यू बोर्ड में हैं तो आप जो है ये दिखाइए कि आप एक अच्छे श्रोता हैं, क्योंकि वो लोग पूछेंगे, कई तरह से पूछ सकते हैं। यू हैव नॉट टू स्पीक एट वंस, जस्ट लिसन टू देम केयरफुली, वो क्या कह रहे हैं। यू जस्ट मेक आउट द मीनिंग ऑफ इट, उसका क्या मतलब निकल रहा है इसको भी देख लीजिए। फिर इसके बाद जो है जितना हो सके उतने कम शब्दों में आप उसका उत्तर दीजिए। यू लिसन मोर एंड स्पीक लेस, और जो जितना पूछा जाए उतना ही बोलिए। यू शुड बी इन ए वेरी कंट्रोल्ड सिचुएशन इन इंटरव्यू। आपको ऐसे नहीं जो भी, और आप उसको फॉर्मल नहीं हो जाइए कि आप गप मारने लगिए इंटरव्यू बोर्ड में। इंटरव्यू बोर्ड इज़ ऑलवेज ए प्लेस टू बी गिवन रिस्पेक्ट, और इट इज़ प्लेस टू बी अफ्रेड ऑफ। ये डरने की भी चीज़ है, ऐसा चीज़ नहीं। लेकिन आप डरोगे क्यों? यू हैव नॉट टू बी अफ्रेड ऑफ।
them. They are also human being. Of course, they may be your teacher, they may be your elders, but and they have a friendly behavior with you. इसलिए कहा गया है कि इनको पीयर टीम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? पीयर टीम. जैसे नैग वगैरह में जब हम लोग थे तो उसको जो है इंस्पेक्शन का टीम नहीं बोला जाता. शुरू में ऐसे चला, फिर बाद में उसको बोला जाता है पीयर टीम. पीयर टीम का मतलब दोस्ताना. पीयर टीम, इसको ऐसे करते हैं पीयर टीम. तो ये लोग दोस्त होते हैं, ये आपके दोस्त होते हैं. दे वांट टू गिव यू मार्क्स, अलॉट यू मार्क्स. दे वांट टू जज यू, दे वांट टू गेट यू बेटर. तो इसके लिए आपको डरने की ज़रूरत नहीं है. बी फ्रेंडली एंड बी फ्रैंक विद देम एंड दे विल डू जस्टिस विथ यू. तो गाइस, ये आज का हमने थोड़ा सा आप ये लिया. तो अभी और आगे चलेगा. अभी थोड़े हमने शुरू किया है, अभी 3-4 वीडियो और चलेंगे. इसमें हम दिखाएंगे किस तरह से कन्वर्सेशन आगे बढ़ता है. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.